Hello students, welcome to Target Study Point. This is Archana Chauhan and today we will discuss exercise 11.1 of class 7th and chapter name is perimeter and area. This is chapter number 11. Okay, so let's start question number 1. Question number 1 is the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Then find its area and the cost of the land if 1 meter of स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। ठीक है, तो यहाँ जो गिवन है क्या है, लेंथ हमें दिया हुआ है 500 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है दैट इज 300 मीटर। ओके, एंड इट्स एरिया वी नीड टू फाइंड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, length of the rectangular piece of land is 500 meter and breadth is 300 meter. Okay, so just write down what we have given here. So given that length of the rectangular piece of land equivalent to 500 meter and same breadth of the rectangular piece of land is equivalent to 300 meter. Okay, so 500 meter length हो गया, 300 meter breadth हो गया. Now as we know that area कितना होना चाहिए, length multiply by breadth. Okay, so just write here length is 500 meter and breadth we have 300 meter. Okay, in multiplication कितने number of zeros आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4 and 5 3s are 15 and meter square. Always keep remember जो area होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है और हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट वी हैव. नाउ in second part we need to find the cost of the land if 1 meter square of the land cost ₹10,000. Cost of 1 meter square of land equivalent to ₹10,000. It is given to us in the question. So cost of meter square of land equivalent to, just multiply by this. ठीक है, सो जो एरिया हमारे पास था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से. ठीक है, ₹10,000 से. ओके, सो वी हैव 4 zeros वी हैव हियर एंड 4 zeros यहाँ पर हमारे पास है. सो 1 2 3 4 रुपीज़. ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितना है ये. Just put the commas here. Okay, this will be your answer. Now question number 2, find the area of a square whose perimeter is 320 meter. So perimeter of a square park we have 320 meter. ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं. देन वी नीड टू फाइंड द एरिया. सो थिंक हेयर, अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा स्क्वायर पार्क का, वी नीड साइड. ठीक है, बिना साइड के तो हम स्क्वायर पार्क का एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे. सो पैरीमीटर की हेल्प से पहले हम स्क्वायर पार्क का साइड फाइंड करेंगे. राइट, सो हेयर गिवन दैट पैरीमीटर of square park equivalent to 320 meter. So perimeter of a square, what it is, 4 multiplied by side, it is 320 meter. So side equivalent to 320 meter by 4. Okay, so 4 से 320 टाइम्स कितने टाइम्स आएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 80 meter. So side we have 80 meter. Right, now we have side of the square park, so we can find area of square park. Area of square park equivalent to side multiply by side. ठीक है, this is the formula and side we have
80 meter. So it is 80 meter multiplied by 80 meter. So it is just 64 and 6400 meter square. So area of the square part will be 6400 meter square. Question number 3. Find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. So think here, find the breadth. Breadth हमने निकालना है rectangular plot का, ठीक है, जिसका एरिया हमें गिवन है एंड लेंथ भी उसका गिवन है, ठीक है. तो डेफिनेटली आप यहाँ से ब्रेथ फाइंड करेंगे और जब आपको ब्रेथ मिल जाएगा, लेंथ ऑलरेडी हमें पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरीमीटर यहाँ से निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं. ओके, सो गिवन दैट लेंथ of the rectangle equivalent to 22 meter. Okay, let the breadth of rectangle it is b meter. ठीक है, हमने मान लिया कि जो ब्रेथ है वो b मीटर होगा. इन दैट केस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना गिवन है, area of the rectangle, it is, we have in the question 440 meter square. So just write down here, it is 440 meter square. Now as you know the formula of the area of the rectangle, it is length multiplied by breadth. ठीक है, so 440 meter as it is, write down here. Length we know it is 22 meter and breadth we need to find, and it is supposed as b meter. Okay, so b equivalent to 440 meter square. So b from here 440 meter square, we can write meter multiplication by meter and 22 meter. Okay, meter से meter कट हो जाएगा and 22 से 44 440 will divide 2 times. 22 to the 44 and 0 as it is. So we will have b equals to 20 meter. So breadth of the rectangle we have here 20 meter. Now we can easily find perimeter of the rectangle. So perimeter of rectangle equivalent to twice of length plus breadth. Okay, so twice of length हमारे पास है 22 meter and breadth we have 20 meter. Okay, so 2 ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 42 meter and 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8. It is 84 meter. So we can write here in the last covering statement, it is hence breadth of the rectangle is 22 meter and perimeter of rectangle is 84 meter. Now question number 4. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth and also find the area. ओके, सो समझ आ ही गया है कि क्या आपको फाइंड करना है. इट्स वेरी क्लियर हियर, ब्रेथ एंड आफ्टर दैट इट्स एरिया. ओके, सो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. ओके, सो गिवन दैट perimeter of the rectangular sheet equivalent to 100 centimeter, right? And length it is equivalent to 35 centimeter given in the question already, and let breadth equivalent to b
सेंटीमीटर. यू विल टेक यूनिट अकॉर्डिंगली, है ना. यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर्स को लिखा है. सो जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं. देखो पैरीमीटर हमें गिवन है रेक्टेंगुलर शीट का 100 सेंटीमीटर. सो पैरीमीटर क्या होता है, इट्स ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर. लेंथ हमें पता है इट इज़ 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ को हमने b सपोज किया है एंड इट इज़ 100 सेंटीमीटर. ओके, सो check here, this is in bracket, 2 is in multiplication, so first it will go in RHS. Okay, so 35 centimeter plus B equivalent to 100 centimeter, it is divided by 2. Okay, so 2 से 100 कितने टाइम्स आएगा, 2 5 10, it will go 50. ओके, सो यहाँ से मिलेगा 35 सेंटीमीटर प्लस B equals to 50 सेंटीमीटर and B equals to 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ब्रेथ यहाँ से हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर. राइट, सो ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया है. नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो यू कैन से hence breadth of the rectangular sheet equivalent to 15 centimeter. Okay, now area of rectangular piece, area of rectangular sheet equivalent to how much, it is length multiplied by breadth. Okay, so length we have ऑलरेडी, वी हैव 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. ओके, सो 35 और 15 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. सो 35 एंड 15, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45 प्लस 7, इट इज़ 52. So we will have from here 525 and सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा. सो वी कैन से फ्रॉम here एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is 525 centimeter square. Now let's check for question number 5. Now check for question number 5. The area of a square park is the same as of a rectangular park. ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको समझनी है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का वो स्क्वायर पार्क के एरिया के इक्वल है. ओके, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, तो स्क्वायर पार्क की हमें साइड दे रखी है 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर. सो वी नीड टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. ओके, सो जितने भी एरिया एंड पैरीमीटर में क्वेश्चंस हैं कोशिश करें आप लोग डायग्राम ड्रॉ करें, उससे थोड़ा सा इजी लगने लगता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर गिवन है. सो जस्ट ड्रॉ अ स्क्वायर एंड स्क्वायर की हमें एक स्क्वायर की साइड हमें पता है दैट इज़ 60 मीटर. एंड क्या हुआ है कि एक रेक्टेंगल और है हमारे पास जिसकी की लेंथ हमने पता है दैट इज़ 90 मीटर. सो वी नीड टू फाइंड ब्रेथ हेयर. ओके, सो जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं. गिवन क्या है कि साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इक्विवेलेंट टू 60 मीटर. ओके, ठीक है, एंड सो वन मोर थिंग जो यहाँ पर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. एंड वन मोर थिंग, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये भी तो गिवन है. ठीक है, ये कितना है,
इट इज 90 मीटर। एंड लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी मीटर। ओके, हमने ये इतना सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है, वी हैव द फॉर्मूला। एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क डेफिनेटली लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ठीक है, इट्स अ वेल नोन फॉर्मूला टू यू। नाउ देखो चेक करो यहाँ से, साइड कितना है हमारे पास 60 मीटर, तो 60 मीटर मल्टीप्लाई बाई 60 मीटर हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क वी हैव 90 मीटर, सो इट इज़ 90 मीटर। ब्रेथ को हमने कितना सपोज किया, बी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक बात और यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपके पास अननोन क्वांटिटी RHS में हो, आप उस टर्म को एक्सचेंज कर लें, ठीक है। तो वी कैन राइट इट 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय बी इक्विवेलेंट टू 60 मीटर, या 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर कर लेते हैं, ठीक है। सो बी इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय 90 मीटर। सी, मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और आपको पता चले कि लास्ट में यूनिट किस तरीके से आपको मिल रही है। ओके, सो मीटर से मीटर कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। सो जो बचा 60 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 9 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कट हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, okay, and 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, we will get from here 20. so breadth जो मिलेगा हमें यहाँ से 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, it means breadth equals to 40 meter. okay, so you can say hence breadth of rectangular park equivalent to 40 meter, 2 सेंटीमीटर। जस्ट मेक अ डायग्राम, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, सेम वायर हमने लेना है जिसका एक स्क्वायर फॉर्म कर देना है। ओके, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो आपने साइड फाइंड करके बताना है कि वो कितना होएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, और ये भी बताना है कि कौन सा शेप ऐसा है जो ज़्यादा एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। सो जो गिवन है, जस्ट राइट डाउन दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितना है 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो ब्रेथ है वो है बेटा 22 सेंटीमीटर, है ना। अब एक बात समझो, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या होगा कि जो रेक्टेंगल है सेम वायर से बनाया गया है और उसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया है, दैट्स मीन इनका जो पैरीमीटर होगा क्या होगा, सेम हो जाएगा। सो वी कैन राइट हेयर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्विवेलेंट टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये बात तो क्लियर है ना, क्यों है, क्योंकि हमने सेम वायर यूज़ की है स्क्वायर को बनाने में। ओके, सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इट इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड equivalent to twice of length we have 40 centimeter, breadth we have 22 centimeter, right? So it is 2 and 4 plus 2 6, 62 centimeter। 4 multiply by side, so यहाँ से side क्या हो जाएगा, side equivalent to 2 multiply by 62 centimeter divided by 4, ठीक है। नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो 4 से क्या एग्जैक्टली जाएगा, नहीं, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 1 टाइम 2 हो जाएगा। सो साइड वी हैव फ्रॉम हियर इट इज़ 31 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड किसकी आ गई है, स्क्वायर की साइड हमें मिल गई है। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया, ठीक है। सो जस्ट फाइंड
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं. इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो इट इज लेंथ वी हैव 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ वी हैव 22 सेंटीमीटर. सो इट इज 880 सेंटीमीटर square. Okay, now find the area of square. It is side multiply by side. Okay, so side we have 31 centimeter, so 31 centimeter into 31 centimeter. Okay, on multiplication 31 1 जा 31 1 हो जाएगा, कैरी 3, 31 3 जा चेक कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so 3 plus 3 6 9, so it is 961 centimeter square. So you can see here 961 centimeter square is greater than to 880 centimeter square. So we can say area of a square is more than the rectangle. So area of square is more than the rectangle. Now check for question number 7. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter, and if the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length and also find the area of the rectangle. So बड़ा सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, ओके, एंड रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो हमें गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, एंड दे आस्क्ड टू फाइंड इट्स लेंथ. ओके, सो लेंथ हमने फाइंड करनी है. सो जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं. सो गिवन दैट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्विवेलेंट टू 30 centimeter. Let the length of the rectangle be L. ओके, मान लिया कि ये L है. सो और क्या गिवन है यहाँ पर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल equivalent to 130 centimeter. Okay, so see here, length of perimeter of rectangle क्या फॉर्मूला होता है, twice of length plus breadth. ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना. So it is equivalent to 130 centimeter. This is the simplest way to solve a question. ठीक है, कभी भी इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना. सो ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ को हमने एल सपोज किया है, ब्रेथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 130 सेंटीमीटर. सो लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 130 बाय 2 सेंटीमीटर. ओके, सो इसको डिवाइड कर देते हैं. डिवीज़न करने पर ये हमें मिलेगा 2 1 2, 2 6 12 and 5 10. It is 65 centimeter from here. ठीक है, सो L प्लस 30 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 65 सेंटीमीटर. थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. सो 65 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर. सो लेंथ इक्विवेलेंट टू कितना होगा, 5 and 6 minus 3 is 3. तो इट इज़ 35 सेंटीमीटर. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वी हैव हेयर 35 सेंटीमीटर. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल equivalent to 35 centimeter. Okay, now we need to find the area of the rectangle. As we know the formula, what it is, length multiplied by breadth. So length we have 35 centimeter, breadth we have 30 centimeter. So just do the multiplication. On multiplication check कर लेते हैं. 0 as it is, 3 5 जा 15, carry 1, 3 3 जा 9 plus 1, it is 10. So सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन सेंटीमीटर से, so it is a square centimeter. Okay, so we can say from here area of the rectangle
equivalent to 1050 centimeter square. Now let's check for question number 8. It is a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. ठीक है, एक दीवार है जिसमें एक डोर लगाया गया है जिसकी जो लेंथ है 2 मीटर है, ओके, एंड जो ब्रेथ है दैट इज 1 मीटर, ओके, सॉरी ये 1 मीटर होगा एंड दिस इज 2 मीटर, ओके, एंड द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वॉल का दैट इज़ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर. राइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. ठीक है, इस दीवार की वाइट वॉशिंग करानी है. ठीक है, उसका हमें कॉस्ट निकालना है. इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर एंड 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से हमने वाइट वॉशिंग की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है. ओके, सो सी स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात है जो समझनी है आपको. डोर दिया हुआ है, वॉल के अंदर में है, तो यू कैन ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ कि बहुत ही सिंपल सी बात है, डोर पर तो वाइट वॉशिंग होगी नहीं, है ना. तो क्या करेंगे, इस वॉल का एरिया फाइंड करेंगे एंड इस डोर का एरिया फाइंड करेंगे. वॉल के एरिया से डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग. ठीक है, वो मिल जाएगा. उसके बाद जो भी कॉस्ट उसने हमने निकालने के लिए कहा है, जो भी रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ओके, नाउ लेट्स चेक, देखते हैं कैसे करना है. ओके, सो जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ द वॉल इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल इक्विवेलेंट टू 3.6 मीटर. ठीक है, सो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द वॉल इट इज इक्विवेलेंट टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एवरी टाइम यू शुड राइट द फॉर्मूला, उससे क्या होता है आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाते हैं. ठीक है, 3.6 मीटर, इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. ठीक है, सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज इन विच यू कैन मल्टीप्लाई. सो जस्ट 45 एंड 36, तो 6 5 जा 30 कैरी 3 एंड 6 4 जा 24 प्लस 3 27. ओके, एंड 3 5 जा 15 कैरी 1 and 3 4 जा 12 plus 1 13. So 0 7 plus 5 12 and 6 and 1. ओके, सो इट इज़ 1620 मीटर स्क्वायर. चेक कर लो कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, तो 1 2 वी हैव 2 डिजिट्स, सो यू विल राइट डेसिमल इन बिटवीन बिफोर 2 डिजिट्स. ठीक है, ये हो जाएगा. सो वी हैव 16.20 मीटर स्क्वायर. ओके, सी एरिया ऑफ द डोर हमारे पास आ गया है. एरिया ऑफ द डोर इक्विवेलेंट टू 16.20 मीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, बट उससे पहले हमें एरिया ऑफ द डोर भी निकालना होगा. सो एरिया ऑफ डोर विल बी, इट इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगल, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, सो यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डोर वी हैव, length of the door we have 2 meter and breadth we have 1 meter. Okay, so it is 2 meters square. Right, now area to be white washed, कि कितना एरिया में वाइट वॉश होना चाहिए. सो इट्स फॉर्मूला विल बी एरिया ऑफ द वॉल area of the wall minus area of the door. ठीक है, so it is 16.20 मीटर स्क्वायर minus 2 मीटर स्क्वायर. ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग चेक कर लो क्या बचेगा, 16.20 एंड 2.00 सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0 2 6 minus 2 is 4 and 1, it is 14.20 मीटर स्क्वायर. राइट,
ठीक है, सो हमें ये मिल गया. नाउ रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, rate of whitewashing, it is equivalent to ₹20 per meter square, right? ये इतना हमारे पास है. So cost of white washing क्या आ जाएगा? Cost of white washing equivalent to 20 multiplication by 14.20, right? So it is 0 0 2 2 4 and 2 4 8 2 1 2. ठीक है, so before 2 digits we will put the decimal, so it is 284 rupees. So we can say cost of whitewashing is equivalent to ₹284.